تو میری بات کیوں نہیں مان لیتا؟ تیری چال نقصان دہ ہے. جہان آرا اکبر فنکار ہے. تم بلا وجہ اس کی فن کی مخالفت مت کیا کر. اور یہ اس کی چال پر روزانہ کے مذاکرات سے میں تنگ آ گیا. ارے بھائی 20 سال کی عادت ایک دن میں تو نہیں جائے گی. کیسے نہیں جائے گی؟ اب اگر یہ گھر میں ہوائی خادمہ کی طرح چلا نا تو پولیس میں اطلاع کر دوں گی. کیوں صبح لڑے جا رہی ہو؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہاں کون سی چیز ٹھیک چل رہی ہے جو تم اس کی چال کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ ویسے بھی ایک بات تو آپ دونوں کو پتا ہے نا کہ ہم ہیں کلاسیکل ڈانسر. اگر ہماری چال میں یہ کشمکش نہ رہی تو ہمارا فن تشنہ رہ جائے گا. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ڈانس شاعری کا اعضا ہے. واہ 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 واہ، بہت خوب اکبر میاں، بڑی پڑھی لکھی باتیں کر رہے ہو بھائی. ویسے صاحبزادے شاعری کا اعضا نہیں، اعضا کی شاعری ہے، سمجھے آپ؟ اچھا جی. اچھا آپ جلدی سے سودا لکھوا لیں. اس گھر میں تو آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. اچھا بھائی ہم باہر جا رہے ہیں، یہ بینر سل جائے تو گلی میں لگوا دینا. اکبر میاں پھر جا کے سودا لے آنا، سمجھے؟ ٹھیک ہے. اچھا خاصا پیٹی کوٹوں کا کپڑا تھا، اٹھا کے بینر بنا دیا. میری تو یہ سنتے ہی نہیں. کیا کروں میں؟ یتیم ہے اس لیے زیادہ ڈانٹتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا. تو انہیں کیوں نہیں سمجھاتا؟ میں کیوں نہیں سمجھاتا؟ تو نے پھر میری نقل کی. میں کیسے سمجھاؤں صاحب؟ کوئی شیرخوار طفل تو ہے نہیں. آپ ایسا کریں ان کا جھولا بکوا دیں، شاید خود بخود سمجھ آ جائے گی. اچھا ٹھیک ہے، لکھوائیے کہاں لانا ہے اور کہاں جانا ہے. اچھا یوں کر، 2 سیر اچھی قسم کے آلو لیا اور 4 سیر اچھی قسم کی پیاز لیا. آپ سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اچھی قسم کے مت کہا کریں. اچھی قسم کے آلو اور اچھی قسم کی پیاز لینے کے لیے ہمیں گلف جانا پڑے گا. آل ایکسپورٹ. یہ اور بھی مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا یہ آلو ایکسپورٹ کر کے ہمیں کیا فائدہ؟ بہت فائدہ ہے. آلو ایکسپورٹ کر کے ہم چپس امپورٹ کرتے ہیں. اچھا لکھوائیں. لکھوانا کیا ہے؟ سودا ودا تو بس یہی لائی ہو. پہلے جا کے تو بینر لگا دے. میں نہیں چاہتی کہ خامخواہ بیکار بیٹھے بیٹھے کبوتروں سے باتیں کرتے رہے. کونسلر بن جائے تو اچھا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا کوئی چیز یاد آ جائے تو بتا دیجیے گا. سیدھی طرح کھڑا ہو. اور ٹھیک سے چلیو. شاباش شاباش شاباش. چل. کیا مصیبت ہے، نہ اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. صاحب یہ بیگم صاحب سے ہم بہت تنگ آ گئے. ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں. ہمارے تو صبر کا پیمانہ بھی بھر گیا ہے. اکبر بیٹی تمہارے صبر کا پیمانہ بھر گیا ہے. تمہیں ابھی آئے ہوئے صرف 3 سال ہوئے. ہاں ہماری طرف دیکھو. پچھلے 20 سال سے وہ ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. ہمارے صبر کا تو بہانہ بھر گیا ہے بھائی. مگر اکبر دل کی اچھی ہیں. میں مانتا ہوں ذرا زبان کی تیز ہے بس. صاحب آپ فرشتہ ہیں. نہیں ہم صرف انسان. نہیں آپ فرشتہ ہیں. ارے بابا یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے تو؟ بیگم صاحب کہہ رہی تھی نا کہ آپ کے پر نکل آئے ہیں. ہم جیت گئے نا اکبر تو ہو سکتا ہے پر نکل بھی آئیں. صاحب آپ اپنے جیتنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے؟ یتیموں اور بے سہاروں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے. پولنگ بھوت آ گئے. ارے پولنگ بھوت نہیں، پولنگ بوتھ. اوپر گردنے راوی. بہت اچھا بینر ہے. کہاں سے بنوایا؟ آپ نے بنوانا ہے. ویسے تو میرا بہت دل کرتا ہے کہ ملے کی خدمت کروں، لیکن دوست کے سامنے ایک ہی ہلکے سے کھڑے ہونے کو میں مایوب سمجھتا ہوں. ویسے بھی دوست کی ترقی کو بنظر دشمن نہیں دیکھتا، اور جس ہلکے سے اپنے محبوب بھائی کھڑے ہوں گے تو اس میں میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کیوں اکبر پتر صحیح ہے نا؟ آپ ہلکے ارباب ذوق سے کھڑے ہو جائیں. کیا مطلب؟ اکبر وہ بات بولتا ہے. وہ جاؤ بیگم صاحب ڈھونڈ رہی ہوں. چلو چلو شاباش. اچھا چلو چلو. محبوب بھائی جی چاہتے شام کا کیا پروگرام ہے؟ میرا تو ایسا کوئی خاص پروگرام نہیں چاہتے صاحب. آپ کا؟ میرا تو ہے. کیا؟ میں شام کو آپ کے گھر آؤں گا.
ये लीजिए सौदा ले आया. अच्छा जरा जल्दी से हिसाब तो लिखवा. कसम से बेगम साहबा, रोजे हिसाब से हमें इतना डर नहीं लगता जितना आपको हिसाब लिखवाने से लगता है. अरे अल्लाह जाने मुझे किस जुर्म की सजा मिली जो तुझे मुलाजिम रख लिया. और कसम से हमें पता नहीं किस जुर्म की सजा मिली है कि आप यहाँ मुलाजिम हो गए. आपको तो अपने किए की सजा मिली है. तेरे साहब कहाँ है? सड़कों पे लोटा लिए घूम रहे. बहुत चांस हो गया है. जीतने का? नहीं, पानी मिलने का. देख तू मुझसे मजाक मत किया कर. तूने और तेरे साहब ने मिलकर पागल कर दिया है मुझे. हर वक्त अपनी किस्मत को रोती रहती हूँ. और हमारी किस्मत देखिए, पैदा हुए तो अम्मा मर गई, बड़े हुए तो अब्बा मर गए, फनकार बने तो नाच मर गया, मुलाजिम हुए तो तनख्वाह मर गई. अब हम किस जगह जाएं बेगम साहबा? जख्मी जिगर किसको दिखलाएं अपना, दर्द दिल अपना हो. ओ, कितने सुर में किसकी किस्मत को रो रहे हो अकबर मियां? महबूब अहमद, तुम्हें पता है कि घर में एक ही लोटा है. तुम्हारा जहां जी चाहता तुम उठा के उसे ले जाते. अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए कोई दूसरा लोटा क्यों नहीं खरीद लेते? जब भाई कबूतरों के लिए दाना ले आए. पहले जरा मेरी बात का जवाब दे दो. आपकी बात मैं सुन चुका हूँ. कबूतरों के लिए दाना ले आए? जी हाँ, दाना तो मैं ले आया, लेकिन साहब कबूतरों का दाना बहुत महंगा हो गया है. अब आप ना कोई दूसरा जानवर पाल लीजिए. अकबर, समझ में नहीं आता कि कबूतरों को और क्या खिलाऊं मैं. हर चीज इतनी महंगी हो गई है. कबूतरों को वीसीआर खिलाओ. सुना है बजट के बाद वही सस्ते हुए हैं सिर्फ. महबूब भाई, आपकी एक बात मुझको पसंद नहीं आई. खैरियत चल साहब, कौन सी बात? मुझको किसी ने बताया है कि मैं आपके खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ. तो इसमें मेरी क्या गलती है चौधरी साहब? पहले ये बताएं कि ये खबर किसी ने ऐसे ही उड़ाई है या इसमें कुछ सच्चाई है? खबर तो आपके बारे में है, आप बताइए. ओ भाभी, मुझको अपनी बसों के बारे में पता होता है कि कहाँ ठहरी हुई है, कहाँ चल रही हैं. आप जरूर काउंसलर बन जाएंगे. आप लड़िए ना. ओ महबूब भाई के खिलाफ तो नहीं लड़ सकता ना. नहीं भाभी। चौधरी साहब, आप लड़िए, हम आपके हक में बैठ जाते हैं. ये लोग पता नहीं क्यों ऐसे गलत खबरें उड़ा देते हैं. वैसे महबूब भाई, आपकी तकरीरें कौन लिखता है? ऐसे चौधरी साहब, शुरू तो खुद ही लिखनी पड़ती है. अच्छा, चलो एक खुशखबरी तो मिली कि चौधरी साहब इंतखाब लड़े. चौधरी साहब कोई तकरीर तो सुनाइए. अच्छी तकरीर सुने हुए एक मुद्दत हो गई. वाकई जहां आ रहा, शायद आखिरी अच्छी तकरीर तुमने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की सुनी थी. हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उम्र पाई है. अरे आप इनकी बातें छोड़िए, आप तकरीर सुनाइए. साहब गजब हो गया. ओह, क्या हो गया? गली में ना चौधरी साहब के बैनर लगे हुए, इंतखाबी निशान है नल. मुबारक है चौधरी साहब. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खबर दुरुस्त है. वैसे ये खबर सुनकर मुझको बहुत कोफ्त हुई है. अरे नहीं चौधरी साहब, भाई आपके आंख में हम बैठ जाते हैं और यकीन मानिए कि हमारे सारे वोट जो है ना वो आपको मिलेंगे. मेरे अकेले के वोट से क्या हो जाएगा? मैं ही तो सिर्फ आपका पक्का वोट हूँ. चलो जी, इस घर से तो मुहिम खत्म हुई. तो मैं फिर इस तरह करता हूँ कि मुआयना करता हूँ और फिर आपको हालात से आगाह करता रहूंगा. अकबर पुत्र जरा आगे से हटो. साहब, आप पहले किस महकमे में मुलाजिम थे? वही अकबर, हम महकमा मासूमियात में थे. वहाँ क्या करते थे? भाई मौसम का हाल बताते थे और क्या. अच्छा ये बताइए कि हमारी जिंदगी में फुहार कब पड़ने वाली है? हैं? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि हमारी तनख्वाह कब मिलेगी? अब तक काउंसलर बनने का चांस भी खत्म हो गया है. हाँ भाई अकबर, इसके बारे में जरा सोचना पड़ेगा. आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बाहर चले जाते हैं? चलिए हम दोनों चलते हैं. कहाँ? जर्मनी. कैसे? फरजाना बता रही थी कि एक ताइफा जा रहा है. तोड़े मैं बता देता हूँ. नादिन दिन्ना दिन दिन्ना धातुन्ना कट. नहीं भाई अकबर, हम जर्मनी नहीं जा सकते भाई. क्यों? हिटलर से कर्जा लिया हुआ था आपने? बेवकूफी बातें मत करो. ये बताओ, बेगम साहब कहाँ गई हैं? बाहर गई हुई हैं. कहाँ? साहब किसी को बताइएगा नहीं. बेगम साहबा बता रही थी कि उनकी अम्मा जान आने वाली हैं. अम्मा जान? तुझे कैसे मालूम? उनकी अम्मा जान का खत आया था ना, अगस्त के एंड में आ रही हैं. खत आया था? खत है कहाँ? बेगम साहबा ने खत के मुन्ने मुन्ने टुकड़े करके फेंक दिए.
صاحب اس سے پہلے کہ کوئی آ جائے آپ کمرہ کرائے پہ جلدی سے اٹھا دیجیے. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ وہ 4 دن کے لیے آئی تھیں اور 2 سال کے بعد گئیں, اور وہ بھی میاں کے مرنے پر, اور کس مشکل سے گئیں. آئیے آئیے جان آرا, تشریف رکھیے. کہاں گئی تھی؟ ارے میں کہاں جاتی, پڑوس میں نیاز تھی, وہاں گئی تھی. 2 پارے پڑھ کر آ رہی ہوں. نیاز کہاں تھی؟ تو بیچ میں مت بولا کر. بھائی جان آرا, ہم سوچ رہے تھے کہ کمرہ ذرا کرائے پہ اٹھا دیں. کمرہ تو میں ستمبر تک کرائے پہ نہیں اٹھا رہی. جی کیوں؟ میں سوچ رہی ہوں کمرے کے فرنیچر کی سیٹنگ بدل دی جائے. جی جی سیٹنگ بدل جائے, یعنی وہ کرسی جو ہے وہ ادھر سے ادھر کر دی جائے. اچھا اچھا, مجھ سے مت الجھو, میں بہت تھکی ہوئی آئی ہوں. جان آرا, سنا ہے آپ کی اماں تشریف لا رہی ہیں. کمبخت, ملازم ہے یا بی بی سی, ہر بات بتا دیتے ہیں. چل اٹھ یہاں سے, نکل نکل یہاں سے, بورچی کھانے میں جا, سیدھی طرح چل. کہیں کا ڈاکٹر لطیف, کہاں جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ارے چودھری صاحب بیمار ہیں, آپ کے گھر کا بغیر ابلا ہوا پانی پی لیا تھا انہوں نے, جا کے دیدار کر لو. اچھا, میں بھی جا کے دیکھ کے آتا ہوں. لے سنو, وہ کبوتر تو ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر, تھینک یو. کون آ گیا اس وقت؟ کون ہے؟ محبوب صاحب آپ تشریف لائیے. چودھری صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ میں انہیں دیکھنے آیا تھا. مجھے اب تو وہ ٹھیک ہے, ویسے آپ پانی پی کے ابالا کریں. جی میرا مطلب ہے جی کہ آپ پانی ابال کے پیا کریں. جی آئیے آئیے, تشریف رکھیے, بیٹھیے. شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ چائے پیئیں گے یا ٹھنڈا؟ نہیں رہنے دیجیے, آپ کو بلا وجہ زحمت ہوگی. آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ چائے چلے گی یا ٹھنڈا؟ چلیں, اگر آپ اصرار کر رہی ہیں تو پھر وہ چیز بنا لیں جس میں دیر لگے. ٹھیک ہے, پھر میں فروٹ کیک بنا کے لاتی ہوں. یہ بندوقیں تو اس سے پہلے میں نے یہاں نہیں دیکھی. یہ پائجن چودھری نے لگوائی ہیں, خاندانی بندوقیں ہیں. اچھا اچھا, اور یہ بندوق کس کی؟ یہ بندوق پائجن چودھری کی ہے, اس سے انہوں نے شیر مارا تھا. جی جی, اور یہ بندوق؟ یہ بندوق میرے ابا کی ہے, اس سے انہوں نے مگر مچھ مارا تھا. اور یہ والی بندوق؟ یہ بندوق میرے دادا ابا کی ہے, اس سے انہوں نے 2 بھتیجے مارے تھے. جی, دو بھتیجے؟ ہاں ہاں جی, بھتیجے وہ تلخ کلامی کر رہے تھے دادا ابا کے ساتھ. اچھا اچھا. آئیے آئیے محبوب بھائی. السلام علیکم چودھری صاحب. السلام, تشریف رکھیں. آنے کی اطلاع تو کی ہوتی. یہ بتائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے چودھری صاحب؟ طبیعت تو اب ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے وہ تحریر لکھ لی؟ ہاں جی, غالب نے کہا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا. تقریر تو میں نے لکھ لی ہے, پر ذرا لذت اس میں مسنگ ہے, وہ تھوڑی سی آپ ڈال دیں اس میں. ٹھیک ہے چودھری صاحب, آپ ایسا کریں کہ شام کو آن کے یہ لذت بھری تقریر لے جائیں. ہاں ٹھیک ہے. قربانی کی کھالوں میں ابھی 2 مہینے باقی ہیں. جی سنیے, کیا ہے؟ شاید تمدن آپ کے قریب سے نہیں گزرا. قریب سے گزر کے دیکھے تمدن ایسا ہاتھ ماریں گے. یہاں کوئی کمرہ کرائے پر خالی ہے؟ 400 وتھ فوڈ. کوئی بات نہیں. بات ہے مگر کموڈ ٹوٹا ہوا ہے. کموڈ ٹوٹا ہوا ہے کیا مطلب؟ آپ باتھ روم کو پوچھ رہے ہیں نا؟ جی ہم نے کبھی اپنی فیملی کو نہیں پوچھا, باتھ روم کو کیا پوچھیں گے. آپ ہیں کون؟ ایک انسان. اچھا ہو گیا آپ نے بتا دیا, ورنہ کوئی چوک ہو جاتی. کیا میں کمرہ دیکھ سکتا ہوں؟ سگریٹ کم پیا کریں, گل ہو گئے تو کمرے کا کرایہ کون دے گا. آئیے. آئیے. یہ بتائیے کہ یہ صاحب خانہ کیا کرتے ہیں؟ صاحب خانہ خاتون خانہ ہیں. صاحب ویسے بہت شریف آدمی ہے, صرف بیگم صاحبہ سے ڈرتے ہیں. سرکاری ریٹائرڈ افسر ہیں. آئیے, یہ رہا آپ کا کمرہ. آئیے. تو بھائی یہ کمرہ ہے
कोई आसान सवाल कीजिए। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर फर्नीचर और क्या क्या है? ये कुर्सी है। सिर्फ कुर्सी? कुर्सी के बाद किस फर्नीचर की जरूरत रह जाती है? अच्छा ये बताओ कि ये जो गुस्ल खाना है इसमें पानी आता है? इस गुस्ल खाने में सिर्फ गुस्सा आता है। लेकिन तुम बातें किस तरह की कर रहे हो मुझे ये बताओ, मैं लेटूंगा किस पर? अपनी पीठ पर। मेरी पीठ? क्यों, क्या मैली है? वैसे तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ये बताओ कि कोई ओढ़ने के लिए तुम्हारे पास कोई चादर वगैरह होगी? हाँ चादर है, लेकिन पांव कितने फैलाओगे उतनी ही चादर दूंगा। अच्छा बात सुनो, गजल सुनोगे? चादर चाहिए या नहीं? जाहिर है चाहिए। तो आइंदा कभी गजल सुनने के लिए मत कहना। मैं समझ गया। शायरी का शौक नहीं है तुम्हें? शायरी का शौक बहुत है, नहीं सुनने की हद तक। अच्छा मैं चादर लेने जा रहा हूं, मेरे आने से पहले अपना पोज बदल लीजिएगा। क्या मतलब? और कपड़े तो आपके पास है ही नहीं, कम से कम पोज ही बदल लीजिए। चादर पोज। अरे महबूब अहमद, ये क्या चीज बैठी है? कौन है आप साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। लोग दरअसल जरा लेट पहुंचे। मैं ये कमरा किराए पर ले चुका हूँ 400 विद फूड। अकबर! आहिस्ता आहिस्ता। क्या आहिस्ता आहिस्ता? सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। अकबर के बच्चे कहाँ मर गए हो? मैं बुलाता हूँ, मैं देख कर आता हूँ कहाँ गया अकबर। जी हाँ, 400 विद फूड मैंने ये किराए पे लिया है। जी क्या बात है, कितनी दफा कहा, कितनी जोर से ना पुकारा करें, दोनों मतलब चादर हाथ से छूटते छूटते रह गई। ये है मकानदारनी और ये है 400 विद फूड शायर। कम बखत, तू ये बता कि तू हमारा मुलाजिम है या हम तेरे मुलाजिम हैं? जब तुझसे मैंने कह दिया था कि कमरा सितंबर तक किराए पे नहीं उठाऊंगी, तो ये कैसे आ गया? ठीक है, जैसे आप फरमा रही हैं वैसा ही हो जाएगा। मैं तब तक वैसे ही रह लेता हूँ, किराया सितंबर से देने लगूंगा। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। वैसे क्या नाम है मियाँ तुम्हारा? अकबर। अकबर। वैसे अकबर मियाँ, तुम्हारी बेगम साहिबा की जबान बहुत खराब है। ये आखिर हैं कौन? क्या बताऊं साहब, यूं समझ लीजिए मलका तहतुल लफ्ज हैं। अकबर। आइए साहब आइए, ये हैं बहुत अच्छे शायर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क़िबला, आपका सामान किधर है? देखिए साहिब, हमारे पास तो सिर्फ मताले का सामान है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी ले आऊं। जरूर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए ना क़िबला, जब अकबर ने आपको जबान दे दी है जी, तो आप हमारे मेहमान, सर आंखों पे रहिए, तो ले आइए ना सामान। बहुत शुक्रिया, आप बहुत भले मानस मुझे लगे। मैं अभी जाता हूँ मिनी पर और अपना सामान लिए आता हूँ। जी 2 रुपए खुले होंगे आपके पास? जी 2 रुपए। बहुत इनाम। ये लीजिए, 1 और 2। शुक्रिया। 50 पैसे अगर नहीं, ठीक, बहुत इनाम। मैं अभी आता हूँ। क्यों मियां अकबर, बेगम साहबा से पूछे बगैर कमरा किराए पर नहीं उठाना चाहिए था? क्यों, कमरा कोई बेगम साहिबा की अम्मा जान है जो उनसे पूछे बगैर नहीं उठाएंगे? अरे 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 भाई, तुम हर बात पर रोने क्यों लगते हो? साहब, बगैर तनख्वाह के हम मुलाजिमत कर सकते हैं, लेकिन बगैर तनख्वाह के हम पुचकार नहीं सुन सकते। मेहमान के सामने हमारी इंसल्ट कर दी। अरे 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 अकबर, अकबर फिक्र मत करो, वो बेगम साहबा को हम समझा देंगे। हाँ, आप और बेगम साहिबा को समझाएंगे? मुझे कौन समझा रहा है भाई? नहीं, वो बेगम साहब, पता है क्या, शायर की बात हो रही थी ना,
मैं उन्हें समझाऊंगा, वो चले जाएंगे। चौधरी साहब कई फेरे लगा चुके हैं साहब, क्या बात है? वो अकबर वो अपनी तकरीर लेने आए होंगे, तुम जल्दी से जाके बुला लाओ उनको, जाओ। अच्छा मैं अभी आता हूँ। जल्दी से कहना चौधरी साहब से आ जाएं। आइए चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सलाम। भाभी आप तो ठीक है ना? आपकी दुआएं हैं, बड़े खूबसूरत बैनर बनवाए हैं आपने। मैंने तो भाईजान चौधरी को ममनू किया था कि महबूब साहब के खिलाफ मत लड़े। अरे नहीं, चौधरी साहब जीतेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं जीत गया है। चौधरी साहब, ओ महबूब भाई, आपका नाम महबूब अहमद की बजाय मुखलिस अहमद होना चाहिए। नवाजिश है। चौधरी साहब, ये रही आपकी तकरीर। शुक्रिया शुक्रिया। अब जरा हिम्मत और इस्तिकलाल से चौधरी साहब आप तकरीर सुना दें। हर पढ़े लिखे आदमी की तरह मैं भी अपने इल्म को अपनी दानिश में पोशीदा रखता हूँ, इसीलिए महबूब भाई से मैंने ये तकरीर लिखवाई है। हमारी चौड़ी पेशानी का क्या फायदा? ओहो भाभी, जैसे मैंने पहले फरमाया था, अनकरीब दौलत आपके कदमों में। चौधरी साहब, क्या ख्याल है, आप तकरीर शुरू कर दें आप? ओहो महबूब भाई, क्या कहूँ, आप जैसे पड़ोसी हों तो बंदा बशर की तबीयत ऑटोमेटिक न्यू खलिशों और न्यू जुस्तजुओं से आशना होती रहती है। हाय, जबान पे अबूर देखिए। क्या पढ़ी लिखी गुफ्तगू करते हैं चौधरी साहब। ओ बस भाभी, यूं समझ लें कि हमारे रिश्तेदार कहते थे कि हमारे भाई के यहाँ मैं नहीं पैदा हुआ बल्कि अदब पैदा हुआ है। चौधरी साहब, फिर तो पैदाइश के फौरन बाद आप पर तनकीद शुरू हो गई होगी। क्या मतलब? मतलब ये चौधरी साहब कि अदब का बुनियादी उसूल है कि वो तनकीद से बच नहीं सकता। ओह अच्छा, आप वैसे कह रहे हैं। जी जी जी। महबूब साहब को तो प्रोग्राम रूबरू में आना चाहिए, क्या बराह रास्त गुफ्तगू करते हैं। जी, बातें तो होती रहेंगी, आप तकरीर सुनाइए। हाँ जरूर जरूर। अकबर पुत्र, जरा डब्बे को ले आओ है दो चार, जब तक स्टेज ना हो तो तकरीर लुत्फ से खाली रहती है। अकबर जल्दी लाओ। ठीक है, लाओ लाओ, शाबाश। बिस्मिल्लाह। जरा संभल के खड़े होइएगा, दड़बा कमजोर है। ओहो, डब्बे कमजोर हैं तो कोई परवाह नहीं है, कबूतर तो मजबूत है ना। मैं फिर तकरीर शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाह। तकरीर है, मुअज़्ज़ज़ हिल रहे। मुअज़्ज़िज़ हिल रहे हैं? नहीं नहीं अकबर पुत्र, डब्बे हिल रहे हैं, डब्बे हैं। तहम्मुल भाईजान, तहम्मुल। इस्तिकलाल चौधरी साहब। साहब नीचे उतर। नहीं नहीं महबूब भाई, एक तो ट्राई करूंगा मैं जरूर है। चलिए। मुअज़्ज़ज़ नहीं ले, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से खुद ही बुलंद हुए थे, खुद ही गिर गए। साहब, चोट तो नहीं आई? उठाए उठाए उठाए। ऐसा लगता है महबूब अहमद, हमारी तुम्हारी कहानी कुछ ठहर गई है। वही रोजाना के झगड़े, वही परेशानियां, वही अकबर की बदतमीजियां, वही कबूतर की हुटर। कहानी कुछ आगे नहीं बढ़ रही, रुक गई है। तुम्हें कहानी के ठहर जाने का दुख है जानरा? तुम्हें नहीं है? खुदा का शुक्र अदा करो जानरा कि तुम्हारी हमारी कहानी ठहर गई है। कहानी आगे बढ़ने लगती है तो डर लगता है कि खत्म हो जाएगी। खैर, मैं नहीं चाहता जानरा कि तुम्हारी हमारी कहानी कभी खत्म हो। कहानी को तो एक रोज खत्म होना ही है, क्योंकि ना तो तुम टार्जन हो और ना मैं कोई रोज नाम। समझ में नहीं आता जिंदगी कैसे कटेगी। आराम से कट जाएगी जहानारा, आराम से कट जाएगी, तुम्हारे हमारे फिक्रों की तरह। क्या मतलब? भाई, तुम जो कुछ कहना चाहती हो मैं बात काट देता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुम बात काट देती हो। ना तुम मेरी सुनना चाहती हो, ना मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ। तमन्ना ही रह गई कि दिन भर में 10 मिनट तुमसे नर्म लहजे में बात कर सकूं। ये मोहतरमा, 3 मिनट तो गुजर चुके हैं। कौन है?
कल से कह रही हूँ इस मेहमान की छुट्टी कर दो। क्यों? ना तो इसके शेरों में कोई वजन है और ना इसकी हरकतों। इससे कह दो अंदर मत आए। सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया था? सुबह सुबह इसी शायर का मुंह देख लिया था। सुबह 6 बजे से 3 मतले सुनाने के चक्कर में बरामदे से गुजरना मुश्किल कर दिया। आ रहा हूँ किबला, आ रहा हूँ, फरमाइए। माफ कीजिएगा महबूब अहमद साहब, भूख की वजह से आपका दरवाजा खटखटाया है। ओह, अकबर ने रात को आपको खाना नहीं दिया? अजीब, वो उमराव जान अदा का चरवा निहायत नानाकूल है। कल जब मैंने कमरे में रोशनी के लिए कहा तो मुझसे कहने लगा इल्म की रोशनी में पढ़ लो। जी, खाना मांगा तो कहने लगा अल्लाह देगा, और चाय के लिए कहा तो पोड़िया में पत्ती दे गया। मुझे बड़ा अफसोस है। आप बाहर चलें, मैं अभी आपके नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। जी छोड़िए महबूब अहमद साहब, ये पालना किसका है? जी मेरा है। जरा झोंके दीजिए। ये किबला, मैं आपसे दरख्वास्त कर चुका हूँ कि आप बाहर तशरीफ ले जाएं। मगर आखिर क्यों? हुजूर वाला, बड़ी तेज आंधी आने वाली है, झक्कड़ चलने वाले हैं। फिर तो ये कमरा बहुत मुनासिब रहेगा। मेरा ख्याल है हम खिड़कियां बंद कर देते हैं। जी, मैं आपको कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं, ये घरेलू तूफान है, इसी कमरे से उठ रहा है। किस तरह की आप बातें कर रहे हैं? घरेलू तूफान है, इसी कमरे से उठ। मैं समझ गया, आप गालिबन तूफान बदतमीजी की बात कर रहे हैं। जी जी, आइए चलते हैं। चलिए। हाय क्या हुआ? बेगम साहिबा, सीधा चलने से हमें स्लिप डिस्को हो गई। बकवास ना कर। स्लिप डिस्को हो गई, स्लिप डिस्क हो जाती है। अच्छा जी। और चटनी क्यों लाया तू? हाँ, वो पोएट के कमरे में बाहर से लगाने के लिए। लेकिन फजर के बाद सोए थे हम, सारी रात गजलें सुनाते रहे हमें। और लाओ पेइंग गेस्ट और करो आमदनी का इंतजाम। 400 विद फूड। कल से अब तक 50 मरतबा 200 मांग चुका है विद फूड। शेर शेर शेर, पता नहीं किस मचान पे पैदा हुआ है। अकबर, अरे भाई अकबर, ये रात हमारे मेहमान खाना खाए बगैर सो गए। जी, मैं चाय लेके गया था उनके कमरे में। तू न लेकर जाया कर बार बार चाय। कोई होटल नहीं खोला हुआ हमने। बेगम साहिबा, रुबाइयां गजलें गीत सुना सुना के हमें जख्मी कर दिया। देखिए कान से अब तक लहू निकल रहा है। बख्श शायरी ना हो गई, गर्मियों में चूटे हो गए, हर तरफ से निकली आ रही है। गजल को भगाओ तो कता निकल आता, कते को मारो तो नज़म चली आ रही है। अरे भाई जान आ रहा, जिन लोगों का ताल्लुक फनून लतीफा से होता है ना, उनमें ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। भाई बात दरअसल कि हर इंसान चाहता है कि वो अपने फन के बारे में बताए, और उसमें कोई बुरी बात भी नहीं। अमी अकबर, जब हम सरकारी अफसर थे तो यकीन मानो हर एक को अपनी कार्यकर्दगी के बारे में बताया करते थे। साहब, हाँ? क्या सरकारी अफसरी भी फनून लतीफा में आती है? जब तक नौकरी रहती है फनून रहती है, उसके बाद रिटायर होने के बाद लतीफा बन जाती है। वाह जहारा वाह, यकीन मानो भाई, कभी कभी तो तुम भी अच्छी बात कह जाती हो। हाँ मियां अकबर, ये बताओ, ये वो हमारे मेहमान जो हैं वो अभी तक सो रहे हैं? हाँ, शाम को उठेंगे अगर उठे। क्या मतलब? मन के सर में दर्द हो रहा था, सर दर्द की गोलियों की बजाय हमने 3 स्लीपिंग पिल्स दे दी गलती से। हाय हाय, कुछ हो न जाए। आधी रुपई सुनाने के बाद खर्राटे लेने लगे। अरे अरे अरे, तो मैं जाके देखता हूँ भाई। वक्त तो डांसर से डॉक्टर कब हो गया तू? देखिए ना बेगम साहब, हमारी जगह कोई भी होता तो वो यही कुछ करता। भाई साहब, भाई साहब, उठिए, उठना। क्या कर रही हो? होश में आ गया तो मेरा अरमान रह जाएगा। उठ। हाय हाय, किस कदर तेल मल रखा है, सारा हाथ चिकना हो गया। अच्छा हटो हटो। भाईजान, ए भाईजान, भाई साहब। मैं कह रहा हूँ शेर सो रहा है तो सोने दीजिए। अकबर, इन साहब का नाम क्या है? इनका नाम है ढोढक। ढोढक? भाई हो सकता है अखबार में पढ़ा था कि ढोढक से तेल निकल रहा हो। मजाक अच्छा नहीं लगता रहा। अच्छा एक सेकंड ठहर जाइए, अभी मैं बताता हूँ। ये क्या देख रहे? भाई कोई कार्ड वगैरह होगा ना इनकी जेब में आखिर। निकालो जल्दी निकालो। हाँ ये देखिए निकल आया एक कार्ड। साहब इनका नाम है
फरजाना। फरजाना? ये कैसे हो सकता है? एक सेकंड साहब, की दूसरा कार्ड देखो। हाँ, ये एक और कार्ड है साहब, शायद इनका नाम है मोइन। जी मोइन साहब उठिए। मोइन साहब, मेरा ख्याल है टेलीविजन वालों को फोन कर दो कि एक प्रोग्राम तरतीब दे दें। कौन सा? मरहूम की याद में। अपने पीछे सिर्फ हमारे 400 छोड़े हैं। देखिए, बुरी बुरी बातें मुझसे मत निकालिए, हम इन्हें अभी उठाए देते हैं। तुम जाके डॉक्टर लतीफ को बुला लाओ। कोई जरूरत नहीं है साहब, वैसे भी डॉक्टर लतीफ अब क्लिनिक पर नहीं बैठते हैं, हम इन्हें ठीक किए देते हैं। आप लोग पीछे हट जाइए। अच्छी तरह ठीक करियो। अच्छा जी। ख़वातीन हज़रात, ये मुशायरा आपकी खिदमत में पाकिस्तान टेलीविजन से पेश किया जा रहा है। कराची के मशहूर शायर तशरीफ लाते हैं, जनाब मोइन। नज्म का उन्वान है सच्चाई। मारा गया, पूरे 20 मिनट के पहले सुन चुका हूं मैं। अर्ज किया है, जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो सुना था वो नहीं था। जो कहा था मैंने सच था, जो कहा था मैंने सच था। दोनों बुला रहे हैं, अब देखिए हमारा जाना किधर बने है। आ 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 आ। क्या बात है, बहुत ऊंचे उड़ रहे हो। किससे कह रही हो? मुझसे या कबूतरों से? तुम तो यूं कह रहे हो जैसे तुम में और कबूतरों में कोई फर्क है। नीचे आ जाओ, शरीफ लोग सारा दिन दीवार पे नहीं बैठे रहते। अभी जहां नारा सारे कबूतर वापस नहीं आए। कोई नई नस्ल के कबूतर तो है नहीं जो रास्ता भटक जाए। जाकर नहा लो, तुम्हारा पानी ठंडा हो रहा है। कबूतरों को मैं बुला लूंगी। अभी 5 मिनट में आता हूँ। मैं जो कह रही हूँ जल्दी से नीचे उतर आओ अपनी औकात पे। ठीक है ये लीजिए, अब आ जाइए, बुला लीजिए। आ आ आ आ आ आ आ आ आ। वो सारे कबूतर आ गए? मुझे लख की ज्यादा फिक्र थी। लख तो आ गया था, बाकियों की मुझे खबर नहीं। ये 3-3 घंटे तुम सीढ़ी पे चढ़ के कबूतरों को बुलाया करते थे ना। मैं समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं थी, आज समझी हूँ। क्या मतलब है? ये तुम्हारी आ से कबूतर आते हैं या पड़ोसी? अरे जहां नारा रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर की आप तो कबूतर भी कान नहीं धरते, पड़ोसी क्या आएंगे? महबूब अहमद, तुम तो बातें बनाने की बेकरी खोल लो। मैं आ कर रही थी और सुल्ताना सहन में आ गई। अरे भाई, उनका सहन है, वो जब चाहे आए जब चाहे जाए। बाई चांस भी तो आ सकती हैं। जिस तरह से वो आई वो बाई चांस नहीं था। अभी तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। कल से कबूतरों को मैं बुलाया करूंगी। जरूर बुलाना। चलो कोई काम तो करोगी। आ तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें 20वां ग्रेड नहीं मिला होगा। वाकई जाना तो बहुत शक्की। साहब, क्या नहाते ही ओले पड़ गए? कब से पड़ रही है? 5 मिनट से। अरे भाई अकबर, कल से ये बेगम साहबा जो हैं ये खुद बुलाया करेंगी कबूतरों को। तुम जाओ। भाड़ में नहीं कहा। मुझे कह चुकी हैं। अकबर चलो भैया, इसी बात पे जरा भाई इस्त्री भी कर दे और गर्म गर्म चाय भी पिला दे 1 कप। अच्छा जी। आ 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 पापी, आप क्या कर रही हैं? चौधरी साहब, आप
کس کو بلا رہی تھی آپ؟ کبوتروں کو بلا رہی تھی. اوہو کہاں گئے ہیں وہ؟ مجھے بتائیں میں لے کر آتا ہوں. نہیں آپ کو زحمت ہوگی. اوہو آپ کیسی باتیں کرتی ہیں، میں ابھی لے کے آتا ہوں ان کو، آپ دیکھیں. اب بتائیے. کبوتر تو آئے نہیں، آپ کیسے آ گئیں؟ ہے پکار پکار کے حلق خشک ہو گیا. محبوب احمد کونسلر بننے کی امید نہ رہی تو تم نے شطرنج شروع کر دی. تم باز نہیں آؤ گے اپنی چالوں سے. اکبر تیری چال ہے. ایسی چال چلوں کلیجہ ہل جائے. چال غلط ہے. چال سے کیا ہوتا ہے صاحب، چلن ٹھیک ہونا چاہیے. تھینک گاڈ. مجبوری ہے، چلن نظر نہیں آتا. یہ پیادہ تو نے کہاں رکھ دیا؟ یہ تو اس میں کیا غلطی ہے؟ ہاں پیادہ ادھر ادھر نہیں چل سکتا ہے، صرف سامنے چل سکتا ہے. وزیر ہر گھر میں جا سکتا ہے، یہ میں تجھے پہلے بتا چکا ہوں. ہاں اور کونسلر؟ یہ کونسلر کہاں سے آ گیا شطرنج میں؟ یہ شے. آخری بار تجھ سے کہہ دے رہی ہوں باورچی خانے میں جا کے کام ختم کر لے. چلو اٹھ یہاں سے. تجھے تو دونوں طرف سے شے پڑ رہی ہے بھائی. اٹھ جا اٹھ جا. بہت پیارے ہیں بھائی جان، بہت اچھی. یہ تو بچہ ہی بالکل ہے. جی معاف کیجیے گا کچھ دیر ہو گئی، میں ذرا ان کو ڈانٹ رہی ہوں. جی بات دراصل یہ ہے کہ جی جس دن جہاں آرا بیگم کی میں ڈانٹ نہ سنوں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون سی غلطی سرزد ہو گئی ہے. چودھری صاحب خیریت، کیا آپ کو بھی کبوتروں کا شوق ہو گیا ہے؟ وہ یہ آپ کے ہیں محبوب صاحب؟ جی ہمارے کبوتر. بھابھی دراصل کبوتروں کو بلا رہی تھی. یک یک ہم آ گئے. اڑ کر. نہیں محبوب بھائی بائی چانس ہے. چودھری صاحب کا آنگن ہے، بائی چانس بھی تو آ سکتے ہیں. جی چودھری صاحب خیر یہ فرمائیے کہ اس وقت کیسے آنا ہوا؟ دراصل بھابھی کی آ پر میں کبوتروں کی تلاش میں سرگردہ تھا. پہلے تو اس کو میں نے کھیل سمجھا، لیکن بعد میں یہ کھیل مہم بن گیا. گلیوں میں دوڑتا پھرا، سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ لاس اینجلس جا رہا ہوں. بھائی کمال کرتے ہیں چودھری صاحب، یعنی خامخواہ آپ نے اتنی تکلیف اٹھائی. کونسلر کا فرض ہے کہ محلے والوں کا خیال رکھیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہو اکبر پترے، کیونکہ کونسلر کا فرض ہے کہ وہ مشکل کو آسان کرے. اپنی مشکل کو. واقعی چودھری صاحب آپ جیسے لوگ اب نظر نہیں آتے. کہاں نظر آئیں گے؟ ایسے لوگ تو 10,000 سال قبل مسیح نظر آتے تھے. کیا مطلب؟ اکبر بہت بری بات ہے، واقعی تم بہت بولنے لگے ہو. 30,615. کیا اور آ گئے ہیں؟ تنخواہ کی فیگر بتا رہا ہوں، آنے والوں کی نہیں. اچھا بڑا ہی نیک ایماندار اور محنتی ملازم ہے ہمارا اکبر. 10,000 ملازم مرے ہوں گے تو یہ پیدا ہوا ہوگا. نہ کوئی لالچ، نہ کوئی غرض. بخت منحوس نچیا. بھابھی کل میری سالگرہ ہے، آپ سب لوگ کل رات کا کھانا ہمارے گھر پہ آ کے کھائیں. بہن کتنے سال کی ہو گئی ہو؟ بس بھابھی یوں سمجھ لیں کہ سلطانہ جو ہے یہ پاکستان سے کچھ چھوٹی ہے. رقبے میں جہان آ رہا عمر میں تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو. سن 48 میں پیدا ہوئی تھی. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. شکریہ. شاباش شاباش. اکبر پتر تم بھی کل آنا ہے. ویسے تم میری باتوں کا برا تو نہیں مناتے ہو گیا ہے؟ مجھے ملازموں کا مذاق پسند نہیں ہے. کیا مطلب؟